हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं प्रवीण आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नए सेशन में, जिसमें हम लोग आज फिर से वेब 3 और टीएलडी के बारे में बात करेंगे। इनके कॉन्सेप्ट और इनकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको दो वीडियो दिखाया है। इन दो वीडियोस में हम लोगों ने इस एआई, वेब 3 और आने वाले जो फ्यूचर का जो नेक्स्ट जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, चाहे वो मेटावर्स का हो, चाहे वो अपना मशीन लर्निंग का हो, उसके बारे में कुछ ना कुछ झलक हमने देखी है। तो इस तरह से मैं दो वीडियो अभी और प्ले करूंगा, एक हिंदी में होगा, एक इंग्लिश में होगा, क्योंकि आज कुछ इंग्लिश के लोग भी जुड़ेंगे। तो मीटिंग आज मैं हिंदी में लूंगा, बट इस वीडियो को प्ले करके एक मैसेज उनके पास जाएगा कि हम लोग बेसिकली किस तरह से काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट वीडियो के माध्यम से कुछ कंटेंट हम लोग ऑनलाइन क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कि सारा कंटेंट आपको ऑनलाइन मिल सके, वीडियो के माध्यम से ग्रुप में, चाहे यूट्यूब पर मिल सके। कि अगर आपको किसी को प्लान या मैंगो ट्री के बारे में बताना हो, वेब के बारे में समझाना हो, तो सारा कंटेंट आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। ठीक है। तो अब ये दो वीडियोस मैं प्ले करूंगा, इनको मैं ट्राई करूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा या फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। आप प्लीज वहां से लेकर डाउनलोड करके अपनी टीम से आप शेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस नए प्रेजेंटेशन को। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक वीडियो और प्ले करूंगा, तो पहले स्टार्टिंग में उस वीडियो की हेल्प लेता हूँ, ताकि जो इंग्लिश में जो व्यूवर्स आए हुए हैं उनको एक 5 मिनट का वीडियो सुना करके, ताकि हम लोग प्रॉपर हिंदी में फिर स्टार्ट कर सकें। तो बस एक मिनट। Ray is a tech-savvy guy and loves to spend most of his time exploring the web on his laptop. One fine day, he was going through an article on futuristic gadgets, and suddenly, he noticed an ad for the PS5 popping right beside the article. He found it a little strange, as he recalled searching for that just a few hours ago. Later that day, he came across some suggestive ads popping up related to buying future-leading gadgets. And that is when he freaked out, thinking, how can it be possible that what he was searching for just a few hours or days ago on the internet is now suggesting ads related similar to them? So he thought of going to his elder brother Aaron, who is a software engineer in an MNC. Upon understanding the situation, he explained to Ray that all of this is happening because we are in an era of Web 2.0. It all started in 1994, when Web 1.0 was introduced to the internet. Basically, Web 1.0 was all read-only content that was not interactable and was similar to a huge Wikipedia page. But after a few years, in 2004, Web 2.0 came into the picture. Web 2.0 made the internet much more interactive because of developments in web technologies such as JavaScript, HTML5, CSS3, and others, which allowed companies to create interactive web platforms like YouTube, Facebook, Wikipedia, and many more. He further added that when we seek out information or data of any kind from any web platforms present on the internet, simultaneously unknowingly, we also provide them with information related to our choices and interests, which are stored in cookies, which later they sell to various companies who make use of this data to advertise exactly what you are looking for. And this is how Ray was able to see ads of his concerned interests. Ray was fascinated by how the internet has evolved and how it works amazingly. But at the same time, he was concerned about the lack of privacy offered by it. Ray, out of his concern, asked Aaron, is there any way that one can get rid of the loopholes of the current Web 2.0? When Aaron answered yes, there are a lot of ways to do that, using Tor browser, incognito mode, etc. But these are not permanent solutions, and there can be fluctuations in their reliability. But this scenario can be changed not just for you, but for everyone using the internet, with the help of Web 3.0. Ray was curious about it and asked, what is Web 3.0? Aaron explained that Web 3.0 is the next step in the evolution of the internet, allowing it to process data with near human intelligence through the use of artificial intelligence and blockchain technologies that run innovative programs to help users by providing them with their relevant choices. It's a significant step toward open, trusting, and permissionless networks.
Aaron further added, to fully comprehend this, we must first explore the four key features of Web 3.0. First is decentralization. Blockchain will help decentralize data storage while also establishing trust in the virtual world. Because Web 3.0 allows information to be retrieved based on its content, it can be kept in several locations simultaneously, making it decentralized. This would dismantle the vast databases currently maintained by internet giants like Facebook, now Meta, and Google, giving more power over people. Second is trustful and permissionless. Web 3.0 will also be trustful and permissionless, which means that participants will be able to interact directly without the need for a trusted intermediary or permission from a governing body. Due to this, you can access any data relevant to your choice without any permission from any other node or third party. For example, if you are researching for some data, you don't need to accept its cookies, or you don't need to provide any sort of details, as there is a trustful bond between you and the web. Third is artificial intelligence and machine learning. In Web 3.0, through technology based on semantic web ideas and natural language processing, computers will be able to understand the information in the same way that people do. For example, I love Paris and I heart Paris may seem different in syntax. However, their semantics are nearly identical. This will help the user to achieve more relevant content to their choices and will provide them ease with internet browsing. Fourth is connectivity and ubiquity. In Web 3.0, the internet will be accessible to everyone, anywhere, at any time. Because IoT, Internet of Things technology, will launch in several new smart devices. These internet-connected devices will no longer be limited to PCs and smartphones, as they were in Web 2.0. Understanding the shortcomings of Web 2.0, corporates like Amazon, Apple, and Google are transforming their existing services into Internet 3.0 apps that abide by these four principles. Siri and Wolfram Alpha are two applications that use Web 3.0 features. After learning about this, Ray was relieved by the fact that Web 3.0 is going to bring so much of a difference, not just in his life, but also to the society as a whole. So, here's a question for you. How is Web 3.0 related to blockchain? A. It helps create smart contracts for web pages on the internet. B. It helps Web 3.0 store its data in the blockchain. C. It offers a decentralized experience to its users. D. All of the above. Please take a minute to think about it and leave your answers in the comments section below. जी सर, तो अभी हम लोगों ने एक वीडियो देखा, उसमें वेब 2 के जो भी इश्यूज थे, वेब 3 में क्या उसके एडवांटेजेस हैं, कैसे वेब 3 इस समय कॉन्कोर कर रहा है, क्या क्या वेब 2 में ऐसे इश्यूज थे जो रियल में हमको रिजॉल्व होना जरूरी था। क्योंकि हम लोग आज ये जूम मीटिंग देख रहे हैं, ये जूम मीटिंग भी ऑलमोस्ट हम सब लोग के पास अभी वेब 2 का ही इंटरफेस है। तो बहुत अच्छे से हम लोग वीडियो देख रहे हैं और बहुत दिन से हम लोग कई सालों से जूम मीटिंग देखते आ रहे हैं, जब से कोविड के बाद से जूम का सेशन स्टार्ट हुआ है। और जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं, चाहे फेसबुक चला रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, चाहे व्हाट्सएप कर रहे हो, ये सब कुछ इसी एरा का, इसी वेब 2 के सेकंड जनरेशन के दौर का है। हमें इसमें कोई कमी हम लोग को नहीं लगती है। फिर भी ऐसे क्या कमियां रह गई या ऐसे कोई इश्यूज हैं जो रियल में जिसकी रिक्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड को ऐसा लगा कि हमको अब नेक्स्ट जनरेशन की रिक्वायरमेंट है और नेक्स्ट जनरेशन के रिक्वायरमेंट के बाद ही हम जाके इन सबको दूर कर पाएंगे। तो बेसिकली इनिशियली अगर हम एक बात करें यूजर बेस की, हम लोग को किसी को भी ऐसा बहुत सारे फील कभी आया नहीं होगा क्योंकि हम लोग उसमें कुछ कमी दिखी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बहुत लिमिटेड यूजर हैं। हम लोग जो एंड यूजर हैं, हम लोग एक लिमिटेड यूजर हैं। हम लोग बहुत ज्यादा कोई बहुत हाई लेवल का सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करते। हम लोग बहुत ज्यादा हाई लेवल की कोई नेटवर्क मोड को ओपन नहीं करते। हम लोग ना कोई बहुत बड़े लेवल के साइंटिस्ट है कि हम लोग को बहुत बड़े ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट हो। और हम लोग गेम भी खेलते हैं, बहुत छोटे मोटे गेम खेलते हैं जिसमें कि 512 MB तक के ग्राफिक्स से भी काम चल जाता है। तो हम लोगों ने कभी उस एक्सट्रीम लेवल पर, एक्सट्रीम मोड पर जा करके कभी अपने सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को कभी चेक ही नहीं किया कि इसमें क्या-क्या कमी इश्यूज हैं या इसमें ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन जो लोग बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं मार्केट में, या जो बहुत बड़े लेवल पर चीजों को डेवलप कर रहे हैं, उनको डिप्लॉय कर रहे हैं, चाहे वो होस्टिंग प्रोवाइडर हो, चाहे वो एक वेब डेवलपर हो, चाहे वो डिजाइनर हो, या ग्राफिक्स को पे काम करते हों,
इन सब चीज़ों को लोग जब यूज़ करते हैं, तब जाके रियल में निकल कर आता है कि हाँ, चीज़ें हमारी बहुत थोड़ी-सी अनसिक्योर है, डेटा हमारे पास हमारा मैनिपुलेट हो रहा है, हमारे डेटा की सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मार्केट में वो जा चुका है। अभी 2 दिन से 3 दिन से आपने देखा होगा फेसबुक पर एक बहुत बड़ा एक रूमर चल रहा है। लोग फेसबुक पर जा करके अपने पोस्ट पर एक मैसेज लिख रहे हैं कि आज अंतिम दिन है, आज के बाद से फेसबुक हमारे प्रोफाइल पिक्चर्स की, हमारे डेटा का, हमारे मोबाइल नंबर का मिसयूज़ करेगा या पब्लिक से शेयर करेगा। तो जो भी वो पोस्ट उस पे लिखेगा, उसका वो शेयर नहीं होगा। ये बेसिकली एक रूमर मार्केट में चल रहा है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, बहुत मेरे काफ़ी बाहर के भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो उनको भी मैंने पोस्ट पर देखा कि उन लोगों ने अपने-अपने लैंग्वेज में, जो भी उनकी रशियन लैंग्वेज हो या वो जर्मन लैंग्वेज है, उसमें उन लोगों ने लिखा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ऐसा रूमर है कि हमारे पास अगर डेटा हमारा आज हम उसको सिक्योर नहीं करेंगे, तो हमारा जो डेटा है, वो ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे चला जाएगा। लेकिन शायद हमें पता ही नहीं कि हमारा डेटा बहुत पहले ही ओपन प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रैवल कर रहा है। जितने भी ये ब्रांडिंग्स की कंपनी है, जो भी ये एडवर्टाइज़मेंट्स कंपनी करती हैं या जितने भी चीज़ें मार्केट में जो हमको कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग करती हैं, ये ऑलरेडी हमारे मार्केट में हमारे डेटा से ही मैनिपुलेट हो रहा है और उससे छेड़छाड़ हो रही है। नहीं तो आप सोचिए कि आपने कोई चीज़ गूगल पर सर्च किया, लेकिन वही चीज़ का उसी चीज़ का एडवर्टाइज़मेंट आपको फेसबुक पे दिखता है। क्योंकि हम लोग जब प्रॉपर एक नेटवर्क एक मोबाइल में जब कनेक्ट करते हैं, जिसमें अगर सेम ईमेल आईडी लगी हुई है, तो हमारा सारा डेटा क्लाउड पर ट्रैवल कर रहा है और डिफरेंट-डिफरेंट जो उसके वेंचर्स हैं, वो उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? तो आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने प्रेज़ेंटेशन के ऊपर और ओपनली हम लोग बात करेंगे कि क्या-क्या कमी, क्या-क्या प्रेज़ेंटेशंस में रह गई हैं। चूँकि आज संडे का दिन है, आज काफ़ी लोग ज़ूम पर होंगे, तो हम लोग आज थोड़ा-सा ज़्यादा चर्चा करेंगे, प्रेज़ेंटेशन पर ध्यान कम देंगे और हम लोग ज़्यादा बातें करेंगे, चर्चा करेंगे इस पे कि आज हम लोग वेब 3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है और रियल में क्या यूटिलाइज़ेशन की रिक्वायरमेंट हमको है। तो मैं कुछ नोट्स आज बना रहा था, मैं उस बारे में चर्चा करूँगा, बात करूँगा आपसे। तो उससे पहले मैं एक वीडियो प्ले करूँगा, हिंदी में है और वहाँ से फिर हम लोग बात अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बस 1 मिनट। दोस्तों आज हम बात ठीक है, मैं अभी एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ, हिंदी में है और फिर इसी वीडियो के बाद फिर हम लोग एक-एक टॉपिक पर मैंने जो नोट किया है, कुछ आप लोग भी नोट करेंगे। हम लोग उस पे बात करेंगे कि इस वीडियो में क्या बताया गया है और उसकी रिक्वायरमेंट हमें रियल में क्यों है, ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन। दोस्तों आज हम बात करेंगे वेब 3.0 के बारे में, जो हमारे फ्यूचर का एक सबसे बड़ा पार्ट या ये कह लीजिए हमारा पूरा फ्यूचर ही बनने वाला है। इंटरनेट की अगर आप हर 5 सालों के इंटरवल्स में ग्रोथ देखेंगे तो आप इंटरनेट के प्रोग्रेस की स्पीड को समझ पाएंगे। करंट टेक्नोलॉजी, इंसानों की जरूरतें और इंसानों का दिमाग, इन 3 फैक्टर्स के चलते हर बार इम्पॉसिबल टास्क्स पॉसिबल में कन्वर्ट होते आए हैं। ऐसे में जो लोग नई दुनिया के साथ अपने आप को इंक्लूड करके उसका हिस्सा बनते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। और यही रीजन है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग न्यू टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलते हैं। और यही रीजन है कि वो मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस अर्न कर पाते हैं। सो फ्यूचर में आप कहीं पीछे न रह जाएं और अपने दिमाग और स्किल्स को अपडेटेड रखें, इसके लिए फ्यूचर के बारे में नॉलेज गेन करना जरूरी है। तो अब देखते हैं कि वेब 3.0 कैसे आया और वेब 1.0 और 2.0 था भी या नहीं। और यहाँ हम आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाएंगे, ना ही हम आपको कोई भविष्यवाणी बताएंगे। हम आपको फैक्ट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और ओरिजिनल डेटा के बेसिस पर एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हाँ, वेब 1.0 एंड 2.0 भी थे। एक्चुअली इसे समझना काफी सिंपल है। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई 1990s में, तब वो बिल्कुल आज की तरह नहीं था। पहले हम सिर्फ इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर सकते थे। मतलब इंटरनेट सिर्फ रीड ओनली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता था। हम कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, आर्टिकल्स, इमेजेस एटसेट्रा को देख सकते थे। ये सबसे इनिशियल वर्जन था वेब 1.0। फिर आया एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड लगभग 2004 के अराउंड। एंट्री हुई वेब 2.0 की। यहाँ काफी चेंजेस आए, इंटरनेट के यूजर्स बहुत बढ़ गए। MP3, MP4, शॉपिंग, ये सब पॉपुलर होने लगा। अब हम न सिर्फ डेटा देख सकते थे बल्कि क्रिएट भी कर सकते थे,
शेयर कर सकते थे अपने ओपिनियंस, कमेंट्स एक्सेट्रा। इसके लिए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स सामने आए। अब जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी, इन प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजिंग भी शुरू हुई और अनलिमिटेड वैरायटी का कंटेंट एंड सर्विसेज इंटरनेट पर आ गया। अब क्योंकि यूजर्स इतने हैं और वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी है, तो सबकी प्रेफरेंस या जरूरत भी काफी डिफरेंट हो गई। और हमारे एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए हमारी जरूरतों के हिसाब के सर्विस, कंटेंट और प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट्स ने हमसे डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया, जैसे लोकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इन सब को एनालाइज करके हमारे लिए रेलेवेंट सजेशंस दिए जा सकते हैं। बट जैसे हर साइट का एक नेगेटिव होता ही है, यहाँ भी वो प्रॉब्लम आई। यूजर्स के डेटा का मिसयूज होने लगा और एडवर्टाइजर्स या ब्रांड्स के फायदे के लिए हमारे डेटा के साथ मैनिपुलेशन हुआ। मतलब कि इन प्लेटफॉर्म्स ने हमारा पर्सनल डेटा शेयर करना शुरू किया। हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी के हिसाब से कंपनीज को हमारा डेटा बेचा जाने लगा। आपने कई बार देखा होगा कि फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट यूजर प्राइवेसी को लेकर काफी इश्यूज एंड स्कैंडल्स आते रहे हैं। तो वेब 2.0 हमारी प्राइवेसी तो इन प्लेटफॉर्म्स के कंट्रोल में थी ही, साथ ही हमारे कंटेंट और एक्टिविटीज का कंट्रोल भी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंटेंट का कंट्रोल फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर इन सब के पास होता है। उनकी पॉलिसीज के अंडर हमें रहना पड़ता है और वो जब चाहे हमें या हमारे किसी कंटेंट को प्लेटफॉर्म से रिमूव कर सकते हैं। मतलब हमारे ही वर्क की फुल ओनरशिप हमारे पास ही नहीं है। और तीसरा एक इशू ये भी है कि हमारी अर्निंग्स भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंट्रोल में होती हैं। हमारे रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा परसेंटेज ये प्लेटफॉर्म्स के पास चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब एड्स में कई बार 45% जितनी अर्निंग तो यूट्यूब के हिस्से आती है। हमारे पास रह जाता है ऑलमोस्ट आधा रेवेन्यू। सो वेब 2.0 एक ऐसा फेस रहा है जहां सारा कंट्रोल, चाहे वो ओनरशिप हो, प्राइवेसी हो या अर्निंग्स हो, सब कुछ इन सारे इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट्स के पास है। और अब वेब 2.0 का एरा एंड हो चुका है और वर्ल्ड एंटर कर रहा है वेब 3.0 में। मेन रीजन ये है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का तोड़ वेब 3.0 के जरिए निकाला जा रहा है। वेब 3.0 एक कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड होगा। इसका मतलब कि कंपनीज के फाउंडर्स, सीईओज और उनकी पॉलिसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा हमारी प्राइवेसी या यूसेज पर। सीधे वर्ड्स में एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड जहां ओनर्स, यूजर्स और क्रिएटर्स तीनों हम ही होंगे। डिसेंट्रलाइज्ड का यही मतलब होता है किसी भी एक इंसान, ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल प्लेस के पास कंट्रोल नहीं होता। मार्केट्स और सर्च इंजिन्स सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होगा। अब आप सोचेंगे कि क्या फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा के फाउंडर्स चले जाएंगे या कोई इन्हें खरीदने वाला है? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। वेब 3.0 के टाइम में ऐसे ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जहां वेब 2.0 की प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, ओडिसी नाम का एक प्लेटफॉर्म इमर्ज हुआ है जहां कंटेंट को अपलोड करने या देखने के लिए टोकन्स का कॉन्सेप्ट है और उन टोकन्स और कंटेंट की एक मॉनेटरी वैल्यू है। वैसे ही ब्रेव ब्राउजर एक ऑल्टरनेटिव सर्च इंजन है। इसमें ब्राउजिंग एंड इंटरनेट सर्फिंग के लिए टोकन्स होते हैं। बट हाउ इज इट पॉसिबल? ये सब कैसे काम करेगा? इस सब का आंसर है द मोस्ट एडवांस्ड एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब जिन लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, उन्हें टोकन और डिसेंट्रलाइज्ड शब्दों से ही क्लिक हुआ होगा। हम इस वीडियो में वेब 3.0 के हिसाब से ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन। यहाँ फाउंडर्स का मेन रोल सिर्फ बिगनिंग में आता है। रूल्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर फाउंडर शुरू में क्रिएट करेंगे। उसके बाद इन प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करेंगे DAO। DAO यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ डिसीजन मेकिंग होगी टोकन होल्डर्स यानी हमारे हाथों में। जिसके पास जितने ज्यादा टोकन्स होंगे उनका उतना ज्यादा स्टेक होगा डिसीजंस में, और बाकी के स्टेक होल्डर्स वोट्स के थ्रू अग्री या डिसअग्री करेंगे। दोस्तों, शायद यकीन करने में मुश्किल हो, लेकिन यही हमारा फ्यूचर है। एक वो टाइम था जब वीडियो कॉल जैसा कॉन्सेप्ट भी सुनने में इम्पॉसिबल लगता था कि हम कैसे घर बैठे दुनिया के किसी और कोने में किसी से बात कर सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन ये अब हमारे लिए नॉर्मल है। ऐसे ही डाउट्स क्रिप्टो करेंसी एंड NFT के कॉन्सेप्ट्स पर भी उठाए गए थे और उससे कितने बिलियनर्स बने हैं ये तो हमें गूगल सर्च से ही समझ सकते हैं। सो अर्निंग के लिए रेडी होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लर्निंग के लिए रेडी रहें। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, NFT
मेटावर्स, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना स्टार्ट कर दीजिए। नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकर इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी हो जाइए। सेफली सेव्ड होंगे। आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे कि ये सब ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट की ही एप्लीकेशंस हैं। बेसिकली वेब 3.0 सारे फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स को साथ लेकर चलेगा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ, जो शायद हमें अभी सोचने में भी अजीब लगे, जैसे मेटावर्स, एआई, मशीन लर्निंग, एनएफटी, गेमिंग टोकन्स, ब्लॉकचेन, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। अग्री करेंगे दोस्तों। जी, तो जैसे हमने अब इस पूरे वीडियो को सुना और इसमें काफी सारी बातें ऐसी बोली जा रही थी जो हम लोगों ने अब तक कभी रियलाइज नहीं किया था। जैसे कि हमारे जो डेटा है वो प्राइवेसी हम लोगों ने उसको लगा रखा हुआ है, बट फिर भी वो पब्लिक से शेयर हो रहा है। उसका कुछ लाइव एग्जांपल समझते हैं। आप लोगों ने फेसबुक पर ऐड देखा होगा। हम जब फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं, जब डाउन जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो वहां पर हमें कुछ एडवर्टीजमेंट दिखते हैं। एडवर्टीजमेंट कैसे दिखते हैं? वो पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से। शायद ही अगर आप में से कोई ऐसा आदमी होगा या कोई ऐसा इंडिविजुअल, कोई कंपनी ओनर होंगे जिन्होंने कभी फेसबुक पर ऐड दिया हो, तो उन्हें मालूम होगा कि जब हम उस पे फेसबुक पर हम जब एक फॉर्म आता है, गूगल फॉर्म, हम जब उसको फिल करते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि आपका ये जो प्रोडक्ट है ये किस एज ग्रुप के लोगों को दिखाना है और किस सिटी या कंट्री के लोगों को दिखाना है। उसमें ये ऑप्शन होता है। अगर मान लीजिए कि मैं अगर अपना कोई वेब3 का प्रोजेक्ट सेल कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि 20 से 30 साल या 35 साल या 40 साल की लोग, जो 20 टू 40 एज ग्रुप के जो लोग हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे, उसके बाद के लोग नहीं समझेंगे। तो मैंने जब एज ग्रुप 20 टू 40 का सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कंट्री देखा। कंट्री सपोज मैंने इंडिया सर्च कर लिया, इंडिया को मैंने उसको चॉइस कर लिया। इंडिया में मैंने अगर देखा कि मुझे दिल्ली या मुंबई में ही लोगों को दिखाना है, तो अगर काफी लोग ऐसे हों जिन्होंने अपने फेसबुक के प्रोफाइल पर अपना सिटी, होम टाउन या अपना एज या मोबाइल नंबर या अपना पर्टिकुलर वो लोकेशन को हाइड कर रखा है, लेकिन फिर भी वो जो एडवर्टीजमेंट, जो ब्रांड कंपनी ने जो एड डाला हुआ है, वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपकी प्राइवेसी सिर्फ पब्लिक यूजर्स के लिए है। अब आपके फ्रेंड्स के लिए हो सकती है, लेकिन वो डेटा जो आपने इनपुट किया, जो फेसबुक को सेव किया है, वो फेसबुक उसको एक्सेस कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो एडवर्टीजमेंट कंपनीज को वो एक्सेस प्रोवाइड करेगा कि आपका जो, उनका जो एडवर्टीजमेंट है वो आपको भी शो हो, आपको भी दिखाई दे। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग, ये लाइव एग्जांपल है कि हम लोग को एडवर्टीजमेंट भी दिखाई देते हैं उस चीजों के, उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के, जो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रोफाइल पर हिडन कर रखा है या प्राइवेसी में ओनली मी लगा रखा है कि मुझे सिर्फ दिखाई दे, लेकिन हमें दिखता है। तो क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि बेसिकली अब तक क्या था कि वेब 1 की बात करें, अगर थोड़ा इनिशियली स्टार्ट करते हैं, तो पहले से भी एक लाइन बार बार रिपीट यहाँ पर वीडियो में रिपीट हुआ है, रीड ओनली। हम सिर्फ पढ़ सकते थे। हमने कोई चीज डेटा सर्च किया गूगल पर, वो एक लंबे से फॉर्मेट में पेज ओपन होके आ गया, आंसर निकल के आ गया, उसको हम सिर्फ पढ़ सकते थे। उसमें कोई भी हमारे पास कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं था डेटा इनपुट कराने का, डेटा स्टोर करने का, कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं था। तो वो बेसिकली एक बिल्कुल ट्रेडिशनल, जो इनिशियली जो वेब आया था, वो उसके हिसाब से वो कैरेक्टर बेस्ड था। बाद में ग्राफिक्स का यूज होने लगा, तो जब वेब 2.0 आया तो इसमें ग्राफिक्स का यूटिलाइजेशन हो गया, जीयूआई। जो पहला वाला वेब था वो सीयूआई चलता था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जब सेकंड जो जनरेशन आ गया, उसमें उसमें कॉन्सेप्ट आ गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई। तो उसमें जब हम लोग जब आगे बढ़े, तो चाहे अभी वीडियो में बताया गया कि आप MP3 सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते थे, सुन सकते थे, आप MP4 यानी वीडियो देख सकते थे, आप बहुत ज्यादा शॉपिंग और एडवर्टीजमेंट भी देख सकते थे, आप अपना खुद के किसी शॉपिंग पोर्टल पर जा करके अपना डेटा स्टोर करके अपनी चीजें लिए चीजें ऑर्डर कर सकते थे, आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ATM कार्ड की डिटेल्स को सेव करके जब भी आपको पेमेंट करना हो, हम उस पर क्लिक करते हैं, पेमेंट एक बार में चला जाता है, हमको बार बार कार्ड नहीं डालना पड़ता है, सिर्फ हमारे पास OTP आता है, OTP हमें डालना होता है। तो जो डेटा इनपुट, जो ये जब से ये रिवोल्यूशन आया, वेब 2 आया, चीजें बहुत सारी आसान हो गई हमारे लिए, हम लोग उसको समझने ज्यादा लगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल है, ट्विटर है, गूगल प्लस था पहले, उससे पहले ऑर्कुट आया। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क साइट आने लगी। सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट डिफरेंट डिफरेंट है। सोशल मीडिया पर आपके पास ऑनलाइन एक्सेस होता है या ऑप्शन होता है न्यूज कलेक्ट करने का, न्यूज सुनने का। सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप लोगों से सोशली कनेक्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग फिजिकली कहीं जा करके, हम लोग कभी मेला जाते हैं या कहीं किसी के बर्थडे में शादी में जाते हैं, लोगों से हम लोग लगातार मिलते हैं, या स्कूल जाते हैं, पुराने स्कूल जब लोगों से मिलते हैं तो हम लोग सबसे मिलते हैं। सेम वही काम सोशल नेटवर्क, सोशल साइट्स पर होने लगा कि हम लोग अपने घर बैठे बैठे, हम लोग यूएसए में मेरा फ्रेंड रहता है, मेरा फ्रेंड यूके में है, या मेरा फ्रेंड दिल्ली में है, मैं सबसे अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करूंगा या अपना प्रपोजल सेंड करूंगा, वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग चैटिंग करेंगे, हम लोग वीडियो कॉल करेंगे। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सोशल नेटवर्किंग साइट्स की वजह से, और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया इस वेब 2 की वजह से। लेकिन इसमें भी
जैसे ही मैंने अपना किसी सोशल मीडिया पर या सोशल कंटेंट साइट पर मैंने अपना एक प्रोफाइल क्रिएट किया, मैंने उसको एक्सेस प्रोवाइड किया, मैंने डेटा सेव किया, तो डेटा जा करके सेंट्रलाइज़ सर्वर पर सेव हुआ। जब डेटा सेंट्रलाइज़ सर्वर पर जब डेटा सेव हुआ, तो वहाँ पर पहला डर था हैकिंग का, कि कोई एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी होल्डर कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। या कभी जब वो डेटा जब ट्रैवल करता है आपके पीसी से निकल करके उस सर्वर तक, जो ट्रैवलिंग टाइम है, इन द मीन टाइम अगर कोई हैकर ने उसको ब्रेक किया या कोई लूपहोल का बेनिफिट ले लिया, तो भी आपका डेटा सिक्योर नहीं है। और इससे भी बड़ी बात, डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी का मतलब क्या हुआ? मैंने अपना डेटा सिर्फ मैंने उसको ऑप्शन डाल रखा है कि सिर्फ मुझे दिखाई देगा, मैं कोई और डेटा शेयर नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि आप बहुत कम ही हम लोग ऐसे हैं कि जो डायरी पर अभी भी अपना डेटा लिखते होंगे, या कुछ मैंने किसी को पैसा दिया हुआ है या मैंने कुछ भी लिया वो लिखते हैं। बाकी सारे आज सब कुछ चीजें के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ चुके हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं। हमें डेटा सेव करना होता है तो हम लोग पिक्चर में सेव करते हैं या गूगल ड्राइव पे सेव कर लेते हैं। मेरे पास अगर कोई वीडियोज़ है, मैं किसी पार्टी में या कहीं गया हूँ, मुझे मेरे पास वीडियो है मोबाइल में, वो मोबाइल खोने पर वो वीडियो खो ना जाए या गुम ना हो जाए या चोरी ना हो जाए या डिलीट ना हो जाए, तो उसको मैं यूट्यूब पर अपलोड करके सेव कर देता हूँ या फेसबुक पर डालकर सेव कर देता हूँ। भले उसमें मैंने प्राइवेसी में ओनली मी लगा रखा है, लेकिन सेव हम लोग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर ही करते हैं। तो हमारी जो निर्भरता है, हमारी जो एक मैं बात करूँ, डिपेंडेंसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर ज़्यादा है। हाँ, लेकिन अगर मैंने अपनी ट्रस्ट वॉलेट किसी का सीड फ्रेज़ ऑनलाइन सेव किया, तो उसका भी पासवर्ड कम से कम मैं पेपर पे घर पे लिख के रखता हूँ। इस लेवल पे हम लोग अभी भी डिपेंडेंसी हमारी फिज़िकल पेपर पर है। अदरवाइज़ सब कुछ हमारा ऑनलाइन ही डेटा है। तो अगर सब डेटा हमारा ऑनलाइन है, सब कुछ, तो वहाँ पर प्राइवेसी कंसर्न आता है कि हमने जो डेटा सेव किया, वो हमें कैसे मालूम चला या हमारा प्राइवेट डेटा बाहर किसी और ब्रांड के पास एक्सेसिबल हो रहा है या वो शेयर हो रहा है। तो उसके लिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांडिंग कंपनीज़ हैं जो उनको पर डेटा पेमेंट करती हैं। पेमेंट वहाँ पर होता है, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो आपको पेमेंट करेंगी। वहाँ पर कंपनीज़ को ये पेमेंट मिलता है कि मुझे 20 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक के कंप्लीट ऑल यूज़र्स का डेटा चाहिए। वो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप फेसबुक फ्री में यूज़ कर रहे हैं। आपने फेसबुक यूज़ करने के लिए एक सिंगल रुपया नहीं दिया। आपने अपना ईमेल डाला, मोबाइल नंबर सब कुछ डाला, तो उससे फेसबुक की इनकम क्या हुई? फेसबुक की इनकम हुई जब उनके पास यूज़र्स आ गए, तो वो ब्रांड कंपनीज़, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे सोनी हो, चाहे वो कोई भी वैन हुसैन कोई कपड़े कंपनी कुछ भी हो, उन्होंने अपने उसपे अपना ऐड दिया, एडवर्टाइज़मेंट दिया। लेकिन उनके एडवर्टाइज़मेंट पर अगर किसी ने क्लिक नहीं किया, तो वो उनकी इनकम कैसे हुई? तो क्यों वो फेसबुक को पेमेंट करेंगे? तो उन कंपनीज़ ने ज़्यादा पेमेंट दे करके ज़्यादा एक फोर्स बनाया कि मुझे डेटा लाइए। मैं अपना एडवर्टाइज़मेंट, अगर फेसबुक मुझसे चार्ज कर रहा है कि मैं 1 दिन या प्रति 1000 लोगों पर अगर मेरा वीडियो शो करे होगा, तो मुझे एक $100 पे करना है। मैंने $100 पे किया, मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास एक मान लीजिए एक मोबाइल कंपनी मेरे पास है। मैंने उस मोबाइल का एडवर्टाइज़मेंट शो कराया फेसबुक पर। मैंने $100 दिया पर 1000 या मान लेते हैं पर 10,000 पर्सन पर। अब उन्होंने ओपन किया, मेरा ऐड देखा, नहीं देखा, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। हो सकता है कि कोई आज तो फेसबुक अकाउंट तो ऑलमोस्ट सबका ही है। 70 साल के, 80 साल के आदमी का भी है और 5-10 साल के बच्चे का भी है। तो मेरा वो जो मोबाइल था, वो उसमें जो उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट थे, वो मुझे पर्टिकुलर टारगेट जिन्हें करना था, हो सकता है वहाँ तक वो वीडियो ना पहुँचा हो। तो मैंने और ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को हिट करने के लिए मैंने पर्टिकुलर फेसबुक से डेटा कलेक्ट किया कि मुझे 20 ईयर से लेकर 30 ईयर तक का मुझे कंप्लीट ऑल डेटा दीजिए। उसमें से भी मैंने कुछ फ़िल्टर लगाया कि जो 30 साल के लोग हैं, वो महानगरों में कितने लोग रहते हैं, यानी कैपिटल्स में कितने लोग रहते हैं और कितने लोग गाँव में रहते हैं। अगर मेरी मोबाइल की कॉस्ट ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज़ या 1 लाख रुपए है, तो मैं उसमें से गाँव के जो यूज़र्स हैं, उनको रिमूव कर दूँगा, जो अर्बन एरियाज़ के हैं, जो रूरल एरियाज़ के हैं। मैं उसमें सिर्फ टारगेट करूँगा दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और बैंगलोर के लोगों को, क्योंकि यहाँ पर उनकी इनकम ज़्यादा है, वो लोग टेक्निकल ज़्यादा हैं। उन्हें समझ में आएगा कि अगर इस मोबाइल में अगर 8 जीबी तो मुझे रैम सब जगह मिलती है, यहाँ 16 जीबी रैम है, तो ये ज़्यादा टेक्निकली फास्ट चलेगा, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मैं ज़्यादा ईज़िली कुछ सॉफ्टवेयर रन कर पाऊँगा, तो मैं उसको खरीदूँगा। मेरी इनकम ज़्यादा है, तो मैं खरीदूँगा। तो हम जितना ज़्यादा कंपनीज़ ब्रांडिंग्स ने फ़िल्टर्स करके डेटा लेना स्टार्ट किया, हमारा डेटा बाहर मार्केट में जाने लगा और हमारे डेटा के साथ फिर हमको एडवर्टाइज़मेंट्स हमारे पास ऐड आने लगे और हम लोग उस पे क्लिक करें या ना करें, हमें ऐड हमारे तक वो बात पहुँच गई और फिर वही एडवर्टाइज़मेंट अगर हमने गलती से एक बार उस पे टच करके क्लिक कर दिया, तो यकीन मानिए फिर फेसबुक आपको बार-बार उसी पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड आपको डिफरेंट-डिफरेंट ब्रांड्स के ऐड शो करेगा। आप कभी किसी एक पर क्लिक करके देख लीजिए। आप अपने जहाँ पर भी रहते हैं, लोकेशन आपका ऑन होगा, वहाँ पर रियल एस्टेट कंपनी या प्रॉपर्टी कंपनी या फ्लैट्स या अपार्टमेंट सर्च करके देख लीजिए। आपने भले ही जैसे एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं ओमेक्स है। आपने ओमेक्स का नहीं ऐड पे क्लिक किया, आपने स्क्रॉल डाउन किया, बंद करके अगला आ गए, आपको दूसरे डेवलपर का भी बिल्डिंग दिखाई देगी। उसके बाद फिर से दिखाई देगा।
क्योंकि वो पर्टिकुलर उसमें क्या मैसेज गया कि आपने एक अगर चीज पे क्लिक किया, इसका मतलब वो आपका इंटरेस्ट है। आप जैसे अपने इंटरेस्ट पर एक पे क्लिक किया, इमीडिएट आपका डेटा बाकी सबसे शेयर किया गया कि इस पर्सन का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में है या अपार्टमेंट्स या फ्लैट खरीदने वाला है। तो सारी कंपनीज ने अपना इतना डेटा अपना हमें दिखा दिया, अपना ऐड हमें दिखा दिया। तो ये जो भी जो जो डेटा का सारा गेम, मैं हर बार एक बात कहता हूँ, जब से हम लोग इस टॉपिक को चर्चा करना हमने स्टार्ट किया, बात करने लगे हैं कि वेब3 टीएलडी के बारे में, तो हम लोग हमेशा बात करते हैं वेब डेटा के बारे में। और हमेशा जब से ये बात हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं एक लाइन यूज करता हूँ कि आगे चलकर जो भी जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा वो डेटा से रिलेटेड होगा। वो जिसके पास जितना डेटा होगा कि किस कंट्री के पास कितने वेपन्स हैं, किस कंट्री के पास कितने आर्मी हैं, कितने नेवी हैं, कौन कहाँ कहाँ पर पोस्टेड है, कितने बॉर्डर पर किस चेक पोस्ट पर कितनी आर्मी कितनी हमारी सेना वहां पर खड़ी है, कितने वहां पर हमारे पास हथियार हैं, हमारे पास परमाणु बम कितने हैं, न्यूक्लियर पावर हम कितना यूज करते हैं, ये हमारे पास सब कुछ जो डेटा है, आगे चल के सारा वर्ल्ड वॉर जो भी होगा डेटा से होगा। और उसका इजिली आप जितनी भी मूवीज बनती हैं हॉलीवुड की, अगर आप जाकर थोड़ा सा साइंटिफिक वाली मूवी देखेंगे, जिसको हम इंग्लिश में साइकी फाई कहते हैं, तो साइकी फाई मूवीज में दिखाते हैं कि कैसे मैंने आपके सर्वर पर किसी कंट्री के पर हैक किया, उस डेटा को ले करके और उनके सारे सर्वर्स को बंद कर दिया, उनके सारे मशीनरीज को मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास उस लेवल का डेटा आ गया कि अगर मुझे मालूम चले कि मेरे किसी दुश्मन के पास या किसी दूसरे कंट्री के पास इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी सेना तैनात है, उसका जो भी कमांड यहाँ से जाता है, तो मैं उनकी कमांड को ब्रेक कर सकता हूँ ऑनलाइन। अब मैं उसके डेटा को, या मतलब मैं मतलब वो कंपनी जो एक करना चाहेगी, तो हम उसको वेपन्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उनको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उनको हम कमांड डिफरेंट दे सकते हैं। और सबसे बड़ा जो डेटा अगर मालूम चले कि जैसे सबसे बड़ा, क्योंकि फिजिकल अगर हम बात करें तो वहां पर डेटा की रिक्वायरमेंट, डेटा का एक्सेस हम कम करते हैं, बट जब ऑनलाइन वर्क है जैसे कि एयरफोर्स है, मैं भी कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था कि डेटा से कैसे छेड़छाड़ होती है। सबसे बड़ा जो एग्जांपल जैसे सबमरीन्स हैं, हमारे जो एयरफोर्स हैं, जो हमारे या मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइट्स जो हम लोग चलते हैं, जो हमारे एविएशन डिपार्टमेंट है, डेटा से छेड़छाड़ करके अगर हम उसके डेस्टिनेशन को चेंज कर दें, क्योंकि ऊपर हमें भी नहीं मालूम रास्ता क्या है, नीचे तो मालूम चलता है रास्ता, हम पूछ लेते हैं रुक करके कि रास्ता दिल्ली जा रहा है या लखनऊ जा रहा है या मुंबई जा रहा है। हवा में तो हमारे पास सिर्फ एक मैप आता है, जो वो एक डिस्प्ले में चलता है, और हम उसके हिसाब से हमारा फ्लाइट ट्रेवल करता रहता है, एयर में उड़ता रहता है। तो वहां पर हम रूट मैपिंग के थ्रू रूट चेंज कर सकते हैं, बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं अगर हमारा डेटा लीक हो जाए तो सारा खेल इसी डेटा का है। तो जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बीइंग अ नॉर्मल यूजर, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारा डेटा कहाँ जा रहा है। हम लोगों ने जो भी ईमेल दिया वो भी हमारे ईमेल, हम लोग सिर्फ अपने जीमेल, हम लोग ज्यादा हमने बैंकिंग यूज नहीं किया, फेसबुक पे हमने दूसरा ईमेल डाल रखा है, मोबाइल नंबर हमारे पास बहुत सारे हैं, मैंने एक डाल दिया, वो मोबाइल में बंद हो चुका है। तो मेरा कोई भी पर्सनल डेटा मेरा फेसबुक पर नहीं है। तो हम लोग को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि हमारा डेटा कितना जगह यूज हो रहा है, प्राइवेसी उसकी क्या है। जो भी आता है हम लोग स्क्रॉल करके क्लिक करके देख लेते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ और जगह बिजी रहते हैं। लेकिन जो लोग बहुत हैवी यूजर्स हैं इंटरनेट पर, जो लोग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट पर ही रहते हैं, तो उन लोगों को मालूम चलता होगा, उन लोगों की प्राइवेसी कंसर्न ज्यादा है। चाहे वो कुछ भी आप देख लीजिए, जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि अभी हमारी कंट्री ने चंद्रयान 3 का हम लोग बहुत अच्छा, हमारा एक लॉन्चिंग हुई, वहां पर लैंड हुआ, एक गर्व की बात हमारे लिए बनी। उसी टाइम पर मैं कुछ और वीडियोस देख रहा था कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग, जो हमारे एनिमीज हैं, जो भी दुश्मन देश हैं, जो भी, वो उसको पूरा ट्रैक करते हैं, कैसे उसको रोका जाए, या कैसे किसी प्रोजेक्ट्स को हम समझे कि वो क्या यूज करने वाले हैं, ताकि हम उससे पहले अपना वो काम कर लें। तो डेटा सिक्योरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि जो भी इस तरह के हमारे संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने डेटा को सेंट्रलाइज वे में अपने अलग सर्वर पर रखते हैं। वो कभी भी इस तरह के ओपन प्लेटफॉर्म, पब्लिक वाईफाई या पब्लिक नेटवर्क का यूज नहीं करते। वो लोग लैन से काम कर, लैन मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क, वो लोग लैन से अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं, न कि वाईफाई से, न कि राउटर से करते हैं, और सॉरी मतलब वाया एयर करते हैं। वो लोग लैन से कनेक्टेड है ताकि डेटा एक पर्सनलाइज उनके सर्वर पर रहे। उनका अपना खुद का सेपरेट सर्वर होता है, जो उनकी एक अपनी बिल्डिंग में कहीं पर इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी सबको रिक्वायरमेंट है। जो जितने बड़े लेवल पर इन्वॉल्व है, उसकी उतनी ज्यादा डेटा इंपॉर्टेंसी है, और उसको सेव करने के लिए उतना ज्यादा वो पे कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जब चीजें वेब 2 में, जब चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, तो वहां पर बहुत सारे ब्रांड्स ने भी कवर किया, डेटा हमारा लिया, ये मैंने अभी आपको बताया आपको। तो उसके बाद बहुत सारी चीजें क्या है कि हमारी एक्टिविटीज भी शेयर होने लगी। मैं कितने टाइम ऑनलाइन रहता हूँ, मैं कौन कौन सी एक्टिविटी मैं अपने फेसबुक पर या गूगल पर करता हूँ, मैं कौन कौन से वीडियोस को देखता हूँ, मैं कौन कौन से चैट्स को या कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है मैंने, उसको देखता हूँ। तो मुझे उससे रिलेटेड ही मुझे कंटेंट प्रोवाइड किया गया।
आप कभी भी देख लीजिए, आप फेसबुक पे जाकर कोई मूवी देखो, कॉमेडी शो देखिए, कुछ भी देखिए, तो आपके पास जितने भी मूवीज जो शो आएंगे सब कॉमेडी के उस पे आते हैं। मैं साइंटिफिक मूवीज या जो भी इस तरह के क्वेश्चन आंसर के जो क्विज होते हैं, मैं इनको देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारे वीडियो मिलते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियोस हैं, या कुछ टेक्नोलॉजी की बातें की जा रही होती हैं। तो पर्टिकुलर हम लोग को जो एक्टिविटीज भी सेव हो रही हैं, कि एक यूजर ग्रुप, एक यूजर बेस में इस एज ग्रुप के अंदर क्या क्या काम करते हैं, उससे रिलेटेड वो कंपनीज अपना प्रमोशन कर सके और उनको इनकम मिल सके, क्योंकि फेसबुक चल उन्हीं के पैसे से रहा है, ना कि हमारे पैसे से, क्योंकि हम लोगों ने 1 भी रुपया फेसबुक को नहीं दिया। हम लोग जीमेल यूज करते हैं, जीमेल पर अपने सिंगल रुपए का हम लोग जीमेल यूज करते हैं, 15 GB का हमको डेटा मिलता है, और वो 15 GB डेटा बहुत ज्यादा, अगर हम कोई वीडियो शेयर ना करें, वीडियोस को हम ऐड ना करें, तो 15 GB डेटा का 15 GB में टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा जो टेक्स्ट फॉर्म में हो, बहुत ज्यादा होता है, कई साल तक आपका स्टोरेज कभी फिल नहीं होगा। फिर भी जीमेल गूगल उसको रन कर रहा है, क्योंकि उसको इनकम उस ब्रांडिंग कंपनी से आ रही है। तो ये समझना होगा कि डेटा हमारे इंपॉर्टेंट क्यों है, वेब3 में हम लोग क्यों आगे बढ़ पा रहे हैं, क्यों हम लोग इस पे लोग बड़े लेवल की जो कंपनीज हैं या सिस्टम्स में क्यों वेब3 पे आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि वेब3 पर वो सब कुछ पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि वहां पर जैसे इस वीडियो में आपने देखा, यहाँ पर ब्लॉकचेन का कनेक्शन है, ब्लॉकचेन का यहाँ पर हम रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो भी डेटा का जो भी प्राइवेसी और कंसर्न था, वो सब कुछ ब्लॉकचेन पर आ गया। ब्लॉकचेन जो कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज, एक मल्टीपल नोड्स पर काम करता है, मल्टीपल सर्वर पर काम करता है, तो वहां पर हमारे पास डेटा का सेविंग ऑप्शन है, मतलब डेटा हमारा थ्रेट नहीं होगा, डेटा हमारा सेफ रहेगा, डेटा हमारा शेयर नहीं होगा, डेटा हमारे पास अपना खुद की ओनरशिप रहेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे पास ब्लॉकचेन की हेल्प से मिलने वाला है। शायद इसीलिए पूरी दुनिया इस समय वेब3 पे बात कर रही है। और जैसे मैंने अभी कल भी मैंने बोला था कि कभी भी जब वेब 1 था और जब वेब 2 आ चुका था, तो कोई भी एक कोई डेडलाइन नहीं आती है इन सब में। ये कोई डेडलाइन नहीं है कि आज ये आपकी लास्ट डेट है, आज आपको अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से कनेक्ट करने का लास्ट डेट है, कल से नहीं होगा। आज आपकी लास्ट डेट है अपने इनकम टैक्स पे करने का, आज आपका लास्ट डेट है आपकी मोबाइल को रिचार्ज करने का, कल ही खत्म हो जाएगा। कभी इसमें कोई डेडलाइन सी डेट नहीं आती कि आज लास्ट डेट है वेब 2 यूज करने का, कल से वेब 3 आ जाएगा। वेब 3 अभी आपका आएगा मार्केट में, हम लोग मार्केट में आ भी चुका है। जो लोग जितना ज्यादा जानेंगे उसको जितना यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज हम लोग अभी भी इसी वेब 2 के फ्रेमवर्क पर हम लोग हैं, और अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी वेब 3 पर रन कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम लोग उसमें जाते नहीं है, समझते नहीं है, उसको हम जानते नहीं है, तब तक हम लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जैसे कि हम लोग वेब 3 के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं कि वेब 3 भी आएगा। काफी लोग, मैं मैसेज पढ़ता हूँ उन लोगों से कि सर वेब 3 स्टार्ट कब होगा, वेब 3 मार्केट में कब लाइव होगा, बाकी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज भी कब लाइव होंगी, टीसीएस यानी टाटा की इन्फोसिस और ये जो हमारे विप्रो है, ये वेब 3 पर कब काम स्टार्ट करेंगे। तो ये सब चीजों का सर कोई फिक्स डेट नहीं है कि कब ये सब चीजें आपके मार्केट में आने वाली हैं। बेसिकली जब हमको रिक्वायरमेंट लगे, क्योंकि एंड यूजर के लिए तो कुछ भी देंगे वो उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि एंड यूजर कभी कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि एंड यूजर की कभी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। एंड यूजर कभी पे नहीं करता है। जो हाई लेवल के जो यूजर्स हैं, चाहे फेसबुक पे हो चाहे किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हो, वो लोग पे करते हैं। वो लोग अपने अकाउंट्स को पे करते हैं, वो लोग अपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, वो लोग सोशल मीडिया मैनेजर रखते हैं जो उनके फेसबुक और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को रन करते हैं, चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। उन लोग की अपनी बाकायदा एक टेक टीम होती है जो डेटा को उनके सेफ रख के वो रोज अपलोड करते हैं। तो जो पे करेगा वही उसको वैल्यू समझेगा कि अब मुझे कुछ और लेना चाहिए, यहाँ पर मेरी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, यहाँ पर मेरा डेटा ज्यादा सिक्योर नहीं है, मुझे कुछ और प्लेटफॉर्म चाहिए। क्योंकि मेरी टेक्निकल टीम ने सजेस्ट किया सर आपको अब सिस्टम चेंज करना होगा। मैं भी कल एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन यूट्यूबर्स ने एक अपना वीडियो डाला उसमें कि उनके पास एक टेक्निकल टीम है। उस टेक्निकल टीम ने उनसे 12.5 लाख रुपए के 5 कंप्यूटर खरीदवाए, 5 पीसी उन्होंने खरीदा अपने टेक्निकल टीम के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी टेक्निकल टीम में रिक्वायरमेंट थी कि सर जिस लेवल का हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अपने डिफरेंट यूट्यूबर्स को बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम स्लो है, ये बहुत हाई कैपेबल नहीं है। और जो हमारा जिस लेवल का हम कंटेंट रेडी करते हैं उसमें हमें बहुत हाई ग्राफिक्स के सिस्टम चाहिए। तो 12 लाख में वो 5-6 लैपटॉप और डिफरेंट डिफरेंट एसेसरीज खरीद के लाए, ताकि वो और आगे रह सकें। तो बेसिकली जो इस लेवल पर काम करते हैं उनको मालूम है कि भाई मुझे किस लेवल का फ्रेमवर्क या किस लेवल का इंटरफेस चाहिए। तो एंड यूजर को कभी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंड यूजर हमेशा एक सिंपली वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको पे करते हैं, हम उसको यूज करते हैं। तो वो फ्रेम आज फेसबुक का कलर ब्लू है, कल व्हाइट हो जाए, कल उसका डिफरेंट आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। आज हमारा एंड्रॉइड का नेक्स्ट वर्जन का डाउनलोड आने वाला होगा, और लेकिन आज भी ऐसे भी लोग होंगे जो टेक्निकली अपडेट नहीं होंगे, वो आज भी 3 साल 5 साल पुराना भी एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे होंगे।
या उनके रिक्वायरमेंट, उनके मल्टीपल चीजें हो सकती है कि हो सकता है उनके पास उतना पैसा ना हो या वो टेक्निकली एडवांस ना हो। उनको काम सिर्फ मोबाइल हेलो करना है, गूगल को कैमरा ओपन करना है, गाना कुछ गाने सुन ले, सॉन्ग को प्ले करना है, बस। इससे ज्यादा वो हाई लेवल की कैपेबिलिटीज वो नहीं चाहिए उनको, तो उनके लिए वो बेटर है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं वो 12 GB 16 GB रैम का मोबाइल लेके आते हैं या लैपटॉप और ज्यादा हाई लेवल का लेके आते हैं। हम लोग 128 GB के रैम में भी, वो सॉरी, स्टोरेज में भी हमारा डेटा, हमारा मोबाइल फुल नहीं होता। किसी किसी का 1 TB भी डेटा फुल हो जाता है, तो वो लोग हार्ड डिस्क लेके कैरी करके चलते हैं। तो डिपेंड करता है हमारी यूजेबिलिटी पे, हमारा जो यूजर बेस है वो किस लेवल का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। जो भी मैंने बातें बताई ये इसलिए था क्योंकि आज कुछ अलग करने का हम लोग को था। कुछ मैं ज्यादा बातें करूंगा क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है वो लिख करके हम लोग बोलते हैं, तो वहां पर लिमिटेड डेटा हम लोग शेयर कर, लिमिटेड कंटेंट हमारे पास होता है। लेकिन अगर हम बिना स्लाइड हम लोग बोलेंगे तो हो सकता है कि हम लोग ने जो रीड किया हो, जो समझा हो, उसके बारे में हम लोग बात कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन को। सीधा जंप करता हूं मैं अपने लास्ट उन सब पेजों पर जहां पर हम लोग आगे चल रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम मैंने अभी बताया, प्रॉब्लम क्या क्या है। बात करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन जैसे मैंने बोला वेब 3 आएगा, वेब 3 पर कुछ सॉल्यूशन होगा, लेकिन कब आएगा इसकी कोई डेट नहीं आएगी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेट या इंटरनेट पर कोई ऐसा टाइम जोन या टाइम लिमिट नहीं आएगा कि आज 6 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 4 घंटे बाद ही खत्म होने वाला है। जब तक हम लोग को ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, हमारी प्राइवेसी की, कंसर्न्स की, हमारी कॉस्ट की, तब तक हम लोग वेब 2 पर ही काम करते रहेंगे। वेब 3 से जितना भी आगे आ चुका हो, और जिस दिन हम लोग वेब 2 पर वो प्रॉब्लम्स को फेस कर लेंगे, अपने हमें हमारे लिए हमारी प्राइवेसी इंपॉर्टेंस होगी, हमारे लिए हमारा डेटा एक रियल एसेट्स के बराबर होगा, हमारे लिए हमारे जो भी वो कंसर्न्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे इशू चल रहे हैं वेब 2 पर, हमारा उसको प्रायोरिटी देंगे, हम उसी दिन से वेब 3 पर स्विच कर जाएंगे। अदरवाइज आज भी लोग ऐसे हैं जो, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक यूज नहीं करते, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, अपने ऑनलाइन बिल पेमेंट नहीं करते। वो आज भी कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल की दुकान पर जा करके फोन को रिचार्ज करवाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को उस पेमेंट गेटवे से कनेक्ट कर रखा है और ऑटो पे लगा रखा है। जब जब वो महीना पूरा होगा, मंथ, और पेमेंट अपने आप उनके वहां से डिडक्ट हो जाएगा। तो दो तरह से लोग हमारे पास हैं। एक वो जो आज भी मोबाइल की दुकान पर जाकर मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, अपना पैकेज खरीदते हैं और पेमेंट कैश में करते हैं। और एक वो लोग भी हैं जो इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड को पेमेंट मोड पर, पेमेंट गेटवे में ऑटो पे पर क्लिक कर रखा है कि जैसे ही वो मंथ खत्म हो, पेमेंट ऑटोमेटिकली उनके वॉलेट से या उसके क्रेडिट कार्ड से खत्म डिडक्ट हो जाए और मैं मेरा बिल पे हो जाए। तो आज भी ऐसे लोग हैं। तो जब तक हम इन सब प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे जो वेब 2 में जो चल रही थी, तब तक हम इन सॉल्यूशंस पर हम फोकस नहीं करेंगे और वेब 3 के हमको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन स्पेशली जो लोग क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं उन्हीं लोगों के लिए पहले आएगा। ठीक है, तो जैसे अपने पास यहाँ पर सॉल्यूशंस क्या है, मोर कंट्रोल, ज्यादा कंट्रोल हमारे पास डेटा का रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या सर्च करते हैं, जो भी हमारा बेटर सर्च ऑप्शन है। सेफर ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पर कोई मिडिल मैन इस तरह की चीजें नहीं रहेंगी, हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे। हम लोग वेब 3 से ये ब्लॉकचेन कनेक्टेड रहेगा, तो ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। तो अपने पास कोई भी मिडिल मैन ऐसा नहीं होगा कि वो जो डेटा को चोरी करे। तो बहुत सारे कंसर्न यहाँ पे निकल के आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि वेब 3 प्रोजेक्ट ऐसा क्या है कि ये प्रॉफिट ही देगा। कि हम लोगों ने अपने डॉट MMIT को जो लेकर इस प्रोजेक्ट को हम लोग हाइप क्रिएट किया हुआ है, हम लोग उसको वर्ल्ड वाइड जो प्रमोट कर रहे हैं, और जो हम लोग को सारा फोकस इस समय अपने TLD वेब 3 के ऊपर है, ये प्रॉफिट क्यों देगा। तो ये कुछ ऐसे कुछ कंडीशन है, सिनेरियो हैं, जो हमको अगर हम कंपेयर करें इसके ऊपर, कि हम किसी भी कंपनी को बड़ा बनने के लिए या पैसा ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, अगर उनके पास ये 4 से 5 6 ऐसे कुछ पॉइंट्स हो, तो वो ज्यादा जल्दी हिट होता है। उसमें से पहला है कि वो यूनिक प्रोडक्ट, आपको कि वो कंपनी या हमारे जो वेब 3 TLD डोमेन है, वो पहली बात तो यूनिक होना चाहिए। आज अगर आप अपना क्रिप्टो लॉन्च करते हैं, आज कॉइन मार्केट कैप पर आप जा करके आप देखते हैं, तो लगभग 22,000 से ज्यादा मार्केट में क्रिप्टो टोकन अवेलेबल हैं। आप एक टोकन और ले आएंगे, वो आपके लिए अनोखा होगा, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो 22,000 वहां एक टोकन होगा। आपके लिए पहला होगा कि मेरा पहला टोकन है, मैं बहुत ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड हूं, मैं मार्केटिंग करूंगा। लेकिन हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड के लिए वो 22,000वां एक टोकन होगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू वो है ग्लोबल मार्केट पे। तो यूनिक प्रोडक्ट, वो आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी यूनिक होना चाहिए। सेकंड है फर्स्ट टू द मार्केट, यानी कि टोटली वो बिल्कुल न्यू होना चाहिए, उसके बारे में हाइप ना क्रिएट हुई हो, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हो, इस लेवल की उसकी मार्केटिंग हो सके कि दुनिया जाने की ये भी चीज मार्केट में आती है क्या। तो इस तरह से चीजें मार्केट में आ चुकी हैं, जो हम लोग अपना वेब 3 TLD है जिसके बारे में बात करेंगे अभी। अगला है टेस्टेड और ऑथेंटिकेटेड। टेस्टेड तो है, ये टेस्टेड तो है,
क्योंकि अगर टेस्टेड ना होता तो आप यकीन मानिए इस लेवल के प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, वेब3 है। ब्लॉकचेन का 95% जो मार्केट शेयर है, जो मार्केट की कैपिटल जो वॉल्यूम है, वो बाइनेंस और इथेरियम के पास है। चाहे वो एक्सचेंज की बात करें, चाहे वो ब्लॉकचेन यूटिलाइजेशन की बात करें, चाहे वो उनके नेटवर्क की बात करें, चाहे वो हम उन पर डिप्लॉय होने वाले टोकन्स की बात करें, ये बहुत ज्यादा है। और बाइनेंस और इथेरियम ऑलरेडी अपना बहुत समय पहले अपना ये वेब3 टीएलडी डोमेन लॉन्च कर चुके हैं। तो उनके पास ज्यादा बड़ी स्ट्रॉन्ग आर&डी टीम है, रिसर्च टीम है, मार्केटिंग टीम्स हैं, और उनके पास एक थिंक टैंक है, और डिप्लॉयर टीम ऐसी है जिन्होंने उसको बहुत लेवल पर डेवलप करके दिया होगा। तो इसका मतलब अगर मार्केट में 95% होल्डिंग वाले दो प्लेटफॉर्म्स ने इसको काम टेस्ट करके मार्केट में लाया हुआ है, तो हमें बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं करना है, बस उस फ्लो में चलना है जिसमें हम कुछ अलग कर सकें, कुछ यूनिक दे सकें, और मार्केट में चला जाएगा। ऑथेंटिकेटेड भी है क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट फ्यूचर को है। क्यों रिक्वायरमेंट है वेब3 की, टीएलडी की? क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं क्रिप्टो के अंदर। हम लोग पेमेंट भेजते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स एड्रेस हमारे पास होते हैं। हम लोग कभी कभी गलती से अपने टोकन्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेंड कर देते हैं, कभी हम लोग गलती से कहीं और भेज देते हैं तो वो रिकवर नहीं होता है। तो बहुत ऐसी बातें हैं जो ये प्रॉफिट इसका इस सेक्टर के प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर हम उस पर काम करें तो। अब स्टार्ट करते हैं, जो पिछले काफी देर से हम लोग बात कर रहे थे उसका सार क्या निकलता है, मतलब उसका कंक्लूजन क्या है। तो उसका ये है कि पहले तो टीएलडी, हम लोग अब वेब3 एक यूनिवर्सिटी है, और वेब3 इस यूनिवर्सिटी के अंदर टीएलडी एक सब्जेक्ट है। वेब3 के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, क्योंकि जो भी कुछ ब्लॉकचेन से रिलेटेड है सब कुछ इस मार्केट में कवर करेगा। लेकिन हमारे पास जो हमारा जो कंसर्न जो टॉपिक है, जिसको हम लोग प्रोमोट कर रहे हैं, या हम लोग जिसको शेयर कर रहे हैं, वो है टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन। ट्रेडिशनली हम लोग बात करते हैं .com लगा करके, वेब3 में हम लोग बात करते हैं .crypto लगा करके, या हमारी .myt लगा करके बात करेंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या है? वेब3 डोमेन्स आर डोमेन्स दैट लाइव ऑन अ पब्लिक ब्लॉकचेन। जो भी डोमेन्स वेब3 के अंदर, जो भी हमारा जो डेटा है, वो जाके स्टोर होता है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये वेब3 का कॉन्सेप्ट है। अगर वो डेटा जाकर स्टोर होता है किसी सेंट्रलाइज सर्वर पर, जैसे गूगल के, फेसबुक पर, तो वो आपका वेब2 है। सिंपल से इसका यही इसका डिफरेंस है। बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर आप क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं हर बार देता हूँ, आपको अपने घर का एड्रेस याद है, आपको अपने ऑफिस का एड्रेस याद है, आपको अपने रिलेटिव का घर का एड्रेस याद है, मतलब बाई पोस्ट ये ना याद हो, लेकिन आप ड्राइव करके जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको हाँ, और आपको अपने स्कूल का एड्रेस याद होगा, आप जहां जहां गए हुए हैं, जहां पर अपने काम किया है, सबका एड्रेस आपको लगभग याद होगा। पर्टिकुलर एड्रेस रिटर्न राइट ना कर पाए तो आप वहां पे जा सकते हैं, या किसी को भेज सकते हैं कि ऐसे ऐसे लैंडमार्क बता करके। लेकिन आपको अपना क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन एड्रेस याद नहीं है। ये हमें मालूम है कि 16 अक्षर का बराबर वो लगभग होता है। वो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड करता है, उसमें कैपिटल स्मॉल लेटर्स होते हैं। लेकिन रियल में क्या एड्रेस है हमें नहीं याद। हम लोग लास्ट के 4 वर्ड्स, 5 वर्ड या 6 वर्ड्स को याद रखते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी होल्डिंग को चेक करने के लिए हम लोग लास्ट के 2-4 वर्ड याद रखते हैं। स्टार्टिंग हम लोग 2 वर्ड याद रखते हैं कि वो बीएससी वो PP20 का है, ट्रस्ट वॉलेट पर है, कि TRC20 का प्लेटफॉर्म है, तो हम लोगों ने, जिसको टेक्निकल होंगे वो जानते होंगे। लेकिन एड्रेस पूरा याद नहीं, जिसको हम लोग ब्लॉकचेन वाले रोज यूज करते हैं। हम लोग का सारा एसेट सिर्फ ब्लॉक क्रिप्टो के ऊपर है, लेकिन उसी क्रिप्टो के एड्रेस हमें याद नहीं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स एक एल्गोरिदम है उसको बनाने के लिए। उस एड्रेस को हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। आपको अगर लगता है कि मुझे कोई लकी नंबर है, मेरा कोई न्यूरोलॉजी के अकॉर्डिंग, मुझे एस्ट्रो के अकॉर्डिंग मुझे कोई लकी नंबर है, तो अगर मैं अपने घर का एड्रेस इस लकी नंबर पर लूंगा तो मुझे बहुत फलदायक होगा, बहुत ज्यादा मुझे बेनिफिट मिलेगा। आप ऐसी सोसाइटी में जाएंगे, ऐसी बिल्डिंग में जाएंगे, अगर आपका जो भी नंबर निकल के आता है, मूलांक को बात करें या कोई भी लकी नंबर की बात करें, उस नंबर के घर को खरीदने के लिए बिड लगाएंगे, या अगर वो फ्लैट या प्लॉट होगा तो वो प्लॉट नंबर खरीद लेंगे। उस पर घर बनेगा तो मकान नंबर उसको पहले से प्लॉट नंबर पड़ जाएगा, वो लकी नंबर कहलाएगा। तो अपने हिसाब से आप उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मोबाइल नंबर लेने के लिए आपको लकी नंबर आपको लेना है, चॉइस नंबर लेना, ज्यादा पे करिए, आपको लकी नंबर मिलेगा। आपको जो वीआईपी नंबर चाहिए, जो भी लकी नंबर हो, आपको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी का आपको आरटीओ में जाते हैं, कार खरीदने के बाद आप अपने हिसाब से लकी नंबर अपना कार का ले सकते हैं। जो भी आपको चॉइस, आपको पेमेंट करना ज्यादा पड़ेगा, आपको बिड लगानी पड़ेगी। लेकिन आप चाह करके भी अपने मन मुताबिक एड्रेस जनरेट नहीं करवा सकते ट्रस्ट वॉलेट पर या इस क्रिप्टो वॉलेट पर। आप जब अकाउंट बनाएंगे उसी टाइम पर आपको एक अपना एड्रेस बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, और वही एड्रेस आपको अब लाइफ टाइम यूज करना है, जब तक वो एड्रेस आपका रहेगा। तो यहाँ पर आपको चॉइस नहीं है। तो वेब3 डोमेन्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये होगा कि हम अपने पर्टिकुलर नाम के साथ, अपने चॉइस नेम के साथ, निक नेम के साथ, अपने किसी फेवरेट नेम के साथ हम लोग यहाँ पर अपना एक एड्रेस जनरेट कर सकते हैं, डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं, और जिस पर हम अपने क्रिप्टो वॉलेट को ब्लॉकचेन वॉलेट को कनेक्ट कर देंगे। तो वही हमारा जो निक नेम है, जो चॉइस का नेम, वो हमारा एज अ ब्लॉकचेन एड्रेस भी कहलाएगा।
तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है। यहाँ पर भी सेम वही जो स्लाइड है, मैंने पूरे बात बोला वही है ये, कि जो भी आपके ब्लॉकचेन से रिलेटेड वर्ड होंगे वो सारे इसके टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी। जैसे कि .com है तो ये Web2 में फीचर करेगा, लेकिन अगर .blockchain, .nft, .eth, .crypto है तो ये Web3 को डिनोट करेगा। ठीक है, बहुत बड़ा इसको इकोसिस्टम है। अब इसका जैसे अभी मैंने बोला सेंडिंग एंड रिसीविंग क्रिप्टो करेंसी, जैसे अगर आपका डोमेन बन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको वो लेंदी एड्रेस नहीं चाहिए होंगे, आपको वो रिक्वायरमेंट होगी आपको उस पर्टिकुलर नेम की जो डोमेन आपने मिंट किया है। ठीक है, आप उसको वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ये सब इसकी बेनिफिट्स हैं। जैसे हमारा खुद का .mit हमारा Web3 TLD डोमेन है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं .com, .net, edu, org, gov, हमारे हम लोग बहुत समय से इसको देखते आ रहे हैं। गूगल पर सर्च करेंगे सब कुछ आपको निकल के आएगा। लेकिन अगर हम बात करें Web3 TLD के अंदर, तो ये ट्रेडिशनल डोमेन ना हो करके यहाँ का जो है इसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से रिलेटेड होगा। जैसे शिबा टोकन है, डाओ टोकन है, बिटकॉइन टोकन है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, सोलाना टोकन है, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, मेटावर्स एक यूनिवर्स है। तो एनएफटीज एक प्लेटफॉर्म है, एक आपका इंडस्ट्री है जहां पर हम इस तरह से नॉन फंजिबल टोकन्स को हम सेल आउट करेंगे, चाहे वो पिक्चर फॉर्म में हो, चाहे गेमिंग टोकन्स के तौर पे हो। जैसे हमारा लास्ट में .mit है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग इसको देख रहे हैं। और इसको लाइफ में क्या क्या बेनिफिट होने वाला है मैंने अपने पूरे उस डिस्क्रिप्शन में आपको बताया है। अब बात करते हैं अपने इकोसिस्टम के बारे में। एक मैंगो थीम बेस्ड हमारा इकोसिस्टम है जिसके अंदर Web3 TLD हमने लॉन्च किया हुआ है, लेकिन वो एक हमारा लाइव प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया है। मैं हमेशा आपको 2 एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको किसी बिल्डिंग एक अपार्टमेंट में बिल्डर से आपको कोई फ्लैट या अपार्टमेंट बाय करना है, तो अगर आपको लग रहा है पहले आप जाकर उस बिल्डर से बात करेंगे कि आपने इससे पहले कितनी बिल्डिंग्स बनाई हैं, उसमें से उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, हम सब कुछ चेक करते हैं। या अगर मैं कोई एडवोकेट या लॉयर हायर करता हूं, मैं कोई वकील के पास जाता हूं, मुझे मेरा कोई केस है, मेरा कोई चालान कटा है गाड़ी का, मुझे उसको, या मेरी गाड़ी बंद हो गई है, पुलिस ने उठा लिया है, नॉन ट्रैफिक में खड़ा था वो, नॉन पार्किंग में, कुछ छुड़ाने पे जाऊंगा, किसी वकील के पास जाऊंगा, तो वकील ने उससे पहले कुछ केस लड़े हैं, पहले कोई गाड़ियां छुड़वाई हैं, या मतलब उसको टैक्स माफ करवाया है, या वो पहला केस लड़ रहा है, हम लोग पूरी स्टडी करते हैं। तो सेम उसी तरह से ये हमारे मैंगो थीम के 4 जो आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं, ये हमारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में लाइव हैं। इसको समझने के बाद ही जो लोग नए लोग होंगे वो समझ पाएंगे कि अगर हमारा Web3 TLD मार्केट में आया है तो आज हम वो क्यों बूम करेगा, वो क्यों हिट होगा, क्योंकि उससे पहले हमारे पास 4 हमारे इकोसिस्टम रह चुके हैं जो ऑलरेडी मार्केट में लाइव हैं, और इनके बारे में जानते हैं कि कैसे ये रन होंगे, कैसे ये चलेंगे। अगर इनकी प्रोग्रेस, इनका हाइप हमें मालूम चल जाएगा तो हम लोग जज कर सकते हैं, एक प्री जज कर सकते हैं कि हमारा जो Web3 TLD है वो भी हिट होगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं डेटा आपको शेयर करके दिखाता हूँ। पहले मैंगो ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ गूगल पे। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं आपको ओपन करता हूँ अपना ब्लॉकचेन, मैंगो ब्लॉकचेन यानी मैंगो स्कैन, MangoScan.io ये हमारा URL है। तो ये अपना कंप्लीट एक ब्लॉकचेन है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ सारे ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, दो टाइप के ट्रांजेक्शन यहाँ आपको मिलेंगे, जो हमारे ब्लॉकचेन पर हो रहे हैं वो, और दूसरा जो हमारे पर्टिकुलर मिंटिंग के दौरान जो आप लोग मिंट करते हैं अपने मैंगो ट्री में, जो आपने डोमेन मिंट किया होगा, अपना डोमेन बनाया होगा, उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो भी यहाँ पर आगे सेव होती हैं। तो मैं इसको पहले ओपन करता हूँ। अब देखिए मैं डेली आपको ये दिखाता हूँ, जो लोग में डेली जूम में आते होंगे, टोटल ट्रांजेक्शन कितनी है ये आप देख सकते हैं। टोटल 37,000 प्लस हमारे ट्रांजेक्शन हमारे ब्लॉकचेन पे हो चुकी हैं। ठीक है, ये हमारे सारे ट्रांजेक्शन हैं जो हमारे ब्लॉकचेन पे हुई हैं। अब मैं 1 बाय 1 ये सारे ट्रांजेक्शन हैश हैं। जब आप डोमेन मिंट करते हैं तो डोमेन मिंट करने के टाइम पर आपको जो एक ट्रांजेक्शन हैश जनरेट होकर आता होगा, उस ट्रांजेक्शन हैश को आप लाकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आप उसको लाइव अपना डेटा चेक कर सकते हैं कि मेरा डोमेन बना या नहीं बना है। ठीक है, अगर नहीं आपने मिंट किया तो लाइव भी आप आकर यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको पहला अपना डोमेन ये अपना वो ओपन करता हूँ ट्रांजेक्शन हैश, ये देखते हैं ट्रांजेक्शन कैसे हुई है। ये सिंपल ट्रांजेक्शन है जो ब्लॉकचेन पे हुई है, इसमें कोई डोमेन नीचे नहीं आया हुआ है। मैं सेकंड ओपन करता हूँ, सेकंड में भी कोई डोमेन मिंटिंग का ट्रांजेक्शन नहीं है। ये आपका डोमेन मिंट हुआ है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, गुरचरण 89.mmit, और ये इनका वॉलेट एड्रेस है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैंने आपको बोला कि हमारे Web3 ने हमारे डोमेन्स को, हमारे क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई कैसे कर दिया? अगर ये डोमेन ना होता, ये डोमेन यहाँ पे ना होता, तो ये जो वॉलेट एड्रेस जो आप देख रहे हैं, मुझे फिर इसकी रिक्वायरमेंट होती है क्रिप्टो ट्रांसफर के लिए।
ठीक है, मुझे फिर इसकी रिक्वायरमेंट होती है या मुझे इसकी नीड होती है क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस के लिए, ठीक है? लेकिन मुझे अब इसको यूज़ ना करके मैं इसको यूज़ करूँगा एज़ अ ब्लॉकचेन एड्रेस। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारे पास हमारी ट्रांजेक्शंस ईज़ी हो गई, हम लोग नाम अपना याद कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो एड्रेस हम याद नहीं कर पाएँगे, ठीक है? मैं आगे चलता हूँ। ये भी कंप्लीट ट्रांज़िशन है हमारे उस पे। एक ये डोमेन मिंट हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं हम। evras.mit और ये उसके टोकन का वॉलेट का एड्रेस है। अब ये याद रखना ज़्यादा ईज़ी है, या इसको याद रखना ज़्यादा ईज़ी है, पर्टिकुलर उस ओनर के लिए। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो उसने सिम्प्लीफाइंग जो क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शंस को किया है, ये कितना रियल में प्रैक्टिकल है ये हमारे लिए, ठीक है? सेकंड हमारा था हमारा जो इकोसिस्टम था, उसके बारे में बात करते हैं। ये ब्लॉकचेन दिखा दिया। मैंगो स्वैप, ये हमारा कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड स्वैपिंग प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? जैसे कि हम लोगों ने अपना पैनकेक स्वैप देखा हुआ है, हम लोगों ने यूनिस्वैप देखा हुआ है। यहाँ पर भी सेम हमारा डिसेंट्रलाइज्ड स्वैपिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपको एक एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करता है, ज़ीरो स्लिपेज का, ठीक है? यहाँ पर आप ज़ीरो स्लिपेज यानी कि बिना किसी को स्लिपेज फीस पे किए, आप यहाँ पर टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं, आपस में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रेड नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पर वो 2 टोकन लेने हैं, जो फंड आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है वो, और जिसमें आपको चेंज करना है वो, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एमएमआईटी का, इसको आपने लिया, ये आया। अब यहाँ पर स्लिपेज 0 सपोज़ यहाँ पर कोई वैल्यू और शो कर रही होती, स्लिपेज अलग से शो करना होता, या कोई ऐसा टोकन ले रहे हैं जिसमें टैक्स लगा हुआ है, तो उसमें जाकर के टैक्स के एल्गोरिदम का वैल्यू आपको यहाँ पर ऐड करना है। ये 3 जो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है, चौथे वाले में आप ऐड कर सकते हैं 0.1, 0.5 या 0.6, आप जो भी चाहें वो ऐड कर सकते हैं, या इसको 0 भी रख सकते हैं, ठीक है? इसे कनेक्ट करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको कनेक्ट करना है, कैसे इसको आपको यूज़ करना है। यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है, कनेक्ट वॉलेट पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल वॉलेट ओपन होके आ जाएँगे। जिस मोबाइल में भी आपने इंस्टॉल कर रखा है अपना ये इसको ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, वहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट या बेटामास्क पर क्लिक करिए, आपके पास अप्रूवल के लिए लिंक आएगा, आप उसको अप्रूव करिए, वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद आपको फिर जितने टोकन्स हैं, की क्वांटिटी आपको शो करने लगेगी, देन उसके बाद आप उसको स्वैप कर सकते हैं, ठीक है? अगला हमारा मैंगो वॉलेट है। ये भी कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, सेम उसी तरह से हमारा ये अपना खुद का ट्रस्ट वॉलेट की तरह ही हमारा अपना ये वॉलेट है, मैंगो वॉलेट, ठीक है? और ये अपना मैंगो टोकन जो मैंने बेसिस स्कैन पे ओपन करके दिखाया हुआ है, यहाँ पर सप्लाई और सारी इसकी डिटेल आप पूरा इसके टोकन का चेन क्या है, टोकन के इस कैटेगरी क्या है, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जो ये मैं बात कर रहा था मैंगो इकोसिस्टम के बारे में, हमारे 4 सक्सेसफुल हमारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, हमारे मैंगो थीम के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं वेब3 टीएलडी के बारे में। तो वेब3 टीएलडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन निकल के आता है कि हम लोग अब मार्केट में क्या लेकर आने वाले हैं, वेब3 टीएलडी। तो ये एक नया लेवल का हमारा इकोसिस्टम होगा। ये भी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है जो मैंगो थीम के अंदर बना हुआ है, वेब3 टीएलडी डोमेन और अपना ब्राउज़र। इन दोनों को मैंने अलग क्यों रखा है, क्योंकि जो पिछले 4 हैं वो बहुत पहले से मार्केट में हैं, ये दोनों मार्केट में नए हैं। वेब3 टीएलडी डोमेन हमने लाइव है, 7 अगस्त को हमने इसकी ग्लोबल लॉन्चिंग किया है, और मैंगो ब्राउज़र हमारा अपकमिंग है जो अभी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। ये वेब3 ब्राउज़र है। बात करते हैं वेब3 टीएलडी डोमेन के बारे में, तो इसके लिए मुझे ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पर, जहाँ पर मुझे इसको आपको लाइव दिखाना है। इसको ओपन करने के लिए आपको मैंगो ट्री पे जाना पड़ेगा। ये अपना वेबसाइट है mangotree.ai। इस पे जाकर के आप अपने सारे मीन्स जो भी आपको डोमेन मिंटिंग करना है, जो भी हमारे प्लान है, सबको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इससे हमारे वेब3 टीएलडी के बारे में। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने अभी आपको साइट में देखा आपने कि वेब3 टीएलडी के डोमेन के अंदर हम आपको लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन के पेज पर भी मैंने आपसे बोला कि ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म व्हिच ऑफर्स यू अ वेब3 टीएलडी डोमेन अलोंग विद लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर आपके पास इनकम अपॉर्चुनिटी है, वो क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। वेब3 डोमेन गिव्स यू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। आपके पास 4 डिफरेंट टाइप की आपको इनकम मिलेगी, जैसे लेवल है, डायरेक्ट है, ऑटो पूल है और रीबर्थ है। जो लेवल और जो डायरेक्ट इनकम है वो आपकी वर्किंग प्लान यानी एक्टिव इनकम में आएगा, और ऑटो पूल और रीबर्थ जो आपका प्लान है, जो आपकी इनकम है, ये आपकी नॉन वर्किंग यानी पैसिव इनकम पर आएगी, ठीक है? तो ये आप जाकर के आप यहीं पर आपको रजिस्टर करना है। जो लोग आज मीटिंग में पहली बार आए हैं, जिन लोगों ने आपको मीटिंग में इनवाइट किया, उनसे उनका रेफर लिंक ले सकते हैं, और रेफर लिंक लेकर उस पे आप साइन अप पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करिए, और आप भी अपना डोमेन जरूर मिंट करिए।
और मिंटिंग के बाद फिर आपके पास एक नॉन वर्किंग इनकम का ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं या टेक्नोलॉजी से प्रमोटेड इन्फ्लुएंस लोग हैं जिनको इसके बारे में आपको लगता है बताने से वो भी इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जब इस वेब3 डोमेन के बारे में जब उनसे आप शेयर करेंगे तो उस पर आपको कुछ वर्किंग इनकम का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके पास बहुत अच्छी इनकम आएगी लेवल और डायरेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो मैं चलता हूँ प्लान में। तो ये मैंने आपको बताया। अब जैसे ये जो डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया था अभी आपको मैंने, वेब 2 वेब 1 में फाइंड ऑप्शन था, हम सिर्फ डेटा सर्च कर पाते थे, लेकिन वेब 2 में MP3 MP4 शॉपिंग और सब कुछ हमने एक्सपीरियंस एक साथ कर पाए। ये ऑप्शन अपने पास आ गया था, लेकिन जो वेब 3 आएगा वहां पर हम चीजों को खुद क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि क्रिएशन के लिए जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है, जिस लेवल से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ आपको इनबिल्ट मिलेगा। चाहे सर्वर की यूजिबिलिटी हो, या आपका ग्राफिक्स डिजाइनिंग के कंटेंट हो, या आपके पास कंटेंट का ऐसा कंटेंट हो जिसको आपको लिखना हो और आपके पास ऑप्शन ना हो, तो एआई बेस्ड, मशीन लर्निंग बेस्ड, जैसे अभी चैट जीपीटी आया हुआ है, आप कुछ भी गूगल पर जाकर चैट जीपीटी में अपना अकाउंट बनाइए, मैं सारा डेटा अपना चैट जीपीटी से कलेक्ट करता हूँ। अब वहां पर एक चीज लिखिए, पूरा एक मैटर लिख के आता है, उसको लिखिए नीचे, मेक इट मोर सिंपल, उसी चीज को शॉर्ट करके आपको दे देगा। तो ये एआई बेस्ड टेक्स्ट इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म है। तो उसी तरह से एआई, मशीन लर्निंग और ये जो ब्लॉकचेन का जो कॉम्बिनेशन है वेब3 के अंदर, ये चीजों को आपको क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और रीडिंग एंड राइटिंग कंटेंट हमारे 2 में अवेलेबल था, लेकिन 3rd में हमारा क्रिएशन ऑप्शन आ जाएगा। ये कुछ एग्जांपल हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। वेब 1 में सिंपली हम टेक्स्ट को देख पाए थे, वेब 2 में हमने फेसबुक और इन सबको, सोशल मीडिया को देखा, वेब 3 में हम ब्लॉकचेन की इंटरेक्टिविटी को हम देखेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पर वेब 3 के अंदर। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसका आने वाला है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक सिंपल पेज पर, ताकि जो लोग पूरे इसको ना समझ पाए हो तो इस अकेले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के वो समझ सकते हैं कि वेब 1, 2 और वेब 3 में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्लूजन की, फाइनल की, कि कैसे ये डिफरेंट है बाकी प्लेटफॉर्म से। तो बाकी प्लेटफॉर्म में जितने भी इस समय लोग वेब3 TLD पे लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अपने बोला था कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल कब होता है, जब उसके पास यूनिक प्रोडक्ट हो, फर्स्ट टू द मार्केट हो। अपने पास यूनिक प्रोजेक्ट क्या है, वेब3 TLD डोमेन, जो यूनिक तो है, जो लेकिन कुछ सिस्टम के पास और अवेलेबल है, लेकिन यूनिक है क्योंकि अभी तक लोग उसके बारे में जान नहीं पाए हैं। लेकिन अपने पास फर्स्ट टू द मार्केट क्या है, हमारे पास कुछ ऐसी एडवांटेजेस हैं जो अब तक मार्केट में किसी के पास नहीं है। जैसा कि बाकी प्लेटफॉर्म पर आपको जाकर के एनुअल फीस यानी रिन्यूएबल चार्ज पे करना है, आपको वहां पर गैस फीस अप्लाई होगी ट्रांजेक्शंस में। हमारे पास कोई एनुअल फीस नहीं है, कोई रिन्यूएबल चार्ज नहीं है, आपके पास लाइफ टाइम ओनरशिप का ऑफर है, एक्सेस रहेगा, हमारे यहाँ कोई गैस फीस नहीं पड़ेगी। प्लस हमारे पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, 2 एडवांटेज हमारे पास हैं कि आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, जो कि आप इस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप एक डायनेमिक आप सॉरी आप स्टैटिक एक वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, वेबसाइट बिल्डर मिलेगा, टेम्पलेट्स मिलेगा, उसके हिसाब से आप अपनी वेबसाइट को डेवलप कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको इस प्रोजेक्ट के अगर किसी के बारे में बताना है, तो वहां पर आपके पास एक इनकम अपॉर्चुनिटी है जो मार्केट में अभी तक किसी के पास नहीं है। आज आप चाहें भी कि मेरे पास .bnb.eth या BNB और इथेरियम का भी जो वेब3 TLD है, आप BNB को प्रमोट करिए, आप किसी को प्रमोट करेंगे, BNB आपको $1 आपको नहीं प्रोवाइड करने वाला, क्योंकि वहां पर ये ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन .MIT में आप अगर इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 लेवल की इनकम है, जिसमें से एक आपके वर्किंग और दूसरी नॉन वर्किंग है। वर्किंग के अंदर भी 2 ऑप्शन है, डायरेक्ट पर काम करेंगे तो डायरेक्ट इनकम आएगा, और डेप्थ और टीम काम करेगी तो लेवल इनकम आएगा। नॉन वर्किंग के अंदर भी आपको एक अनलिमिटेड डेप्थ की इनकम मिलने वाली रीबर्थ में, और आपके पास ऑटो पूल है, जब जब फुल पूरे वर्ल्ड से फिलअप होगा तो उसकी भी आपको इनकम मिलेगी। तो ये अपने पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो अब तक मार्केट में किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो आज मैंने ट्राई किया कुछ एक्स्ट्रा चीजों को बताने के बारे में, ओरली ज्यादा बात किया मैंने कंटेंट दिखाने के बजाय। मैं प्रयास करता हूँ कुछ नया नया कंटेंट या वीडियोस में आपके सामने बनाकर लाऊं और दिखाऊं, ताकि आपके सामने चीजों को ज्यादा क्लियरिफाई कर पाए कि वेब3 TLD डोमेन जो है ये मार्केट में क्यों आया है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, .MIT का कॉन्सेप्ट ही ज्यादा हिट क्यों होगा, लोग ज्यादा अवेयर क्यों होंगे इसके बारे में, इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें मिल रही है जो तक मार्केट किसी और के पास नहीं है। इस सब कुछ हमारा जो प्रोग्राम चलता है, ये एजुकेशन प्रोग्राम जो हम रोज रात में इंडिया के टाइम के हिसाब से 9 से 10 करते हैं, इसमें आप अटेंड करिए, टीम को लेकर बैठिए, लोगों को बताइए इसके बारे में, और एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करिए। रियल मायने में इस कॉन्सेप्ट को हम इजिली तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, नमस्कार।